میں بڑا آج خوش ہو رہا ہوں جی، آپ ایک پڑھا لکھا بندہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں۔ 9 اقسام ہے جی آرتھوپیڈکس کی، ہر ایک قسم اللہ کے فضل سے یہاں ہو رہی ہے۔ تو میرے 9 بچے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ باہر سے ٹریننگ لے کے پھر یہاں کام کر رہے ہیں۔ میرا نیا MRI لگ رہا ہے ماشاء اللہ۔ پاکستان میں اس طرح کا ابھی تک کوئی نہیں ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے۔ $4 ملین کی مشین 500 مریض فری میں ٹریٹ کر چکی ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسانی جانوں کا علاج کرتا ہے اس پہ لازم ہے کہ اس چیز میں ید طولہ حاصل کر لے، ماڈریشن میں نہیں ہے۔ اس وقت ہم لوگ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا کرم، ٹھیک ٹھاک بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا سفر شروع کب ہوا گھرکی ہاسپٹل کے ساتھ؟ میں جی 1987 میں برطانیہ سے تربیت لے کے واپس آیا۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے شیخ زائد ہسپتال میں وفاقی حکومت کی پہلے نوکری شروع کی، 2 سال وہاں رہا اسسٹنٹ پروفیسر، پھر پنجاب حکومت میں میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آ گیا، پھر میں جنرل ہسپتال، سروسز ہسپتال وغیرہ کام کیا۔ میں نے 14 سال کام کرنے کے بعد میں پروفیسر بن چکا تھا، سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا میں پنجاب کا۔ تو میں نے 2002 میں 46 سال کی عمر میں پروفیسری سے استعفیٰ دے دیا۔ ورلڈ کپ جب ہم جیتے تھے تو کرکٹ کا میں ٹیم کا ڈاکٹر تھا، تب مجھے جی یہاں سے آفر ملی اور میں یہاں آ گیا، اور آپ سوچ نہیں سکتے اللہ پاک نے کتنا یہاں کام لے لیا۔ اب وہی لوگ، جب میں نے استعفیٰ دیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ لوگ تو میٹر ہوتے ہیں، یہ کلو میٹر ہے۔ اب وہی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین فیصلہ تھا تمہارا۔ اور ہم نے اب تک جی 200 بچے آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ہم صرف FCPS کراتے ہیں جی۔ یقین کریں میرے بچے، اتنا مجھے ان پہ مان ہے کہ اتنا شاندار کام کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے تھے کہ اسکردو گلگت میں نئے جوڑ ڈل رہے ہوں گے؟ ماشاءاللہ۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں لوگ، کمر ٹوٹتی ہے، ان کو سنگل ڈالے میں ڈال کے اسلام آباد لایا جاتا تھا جی، اور جو 2-4 ایکڑ تھی وہ بھی بک جاتی تھی۔ اب وہیں ان کے گھروں میں آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے جی۔ اچھا، اس میں صرف پاکستان کے ہی ہیں کہ کوئی فورن ڈاکٹرز بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ واحد آرتھوپیڈک سینٹر ہے ملک کا جس میں 12 ممالک سے لوگ آ کے ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور سال میں کئی ممالک کے لوگ آ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس نائجیریا کا بچہ ہے، ہمارے پاس گھانا سے بچہ آ رہا ہے، آئرلینڈ سے، مڈل ایسٹ سے، ویسٹ انڈیز سے لوگ آ کے ٹریننگ، نیپال سے ٹریننگ لے کے جا چکے جی الحمدللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی محمد صاحب جو کہ نائجیریا سے جن کا تعلق ہے، اور وہ یہاں پہ ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے ہیں گھرکی ہاسپٹل میں، تو ان سے تھوڑا گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر علی محمد صاحب، ہاؤ آر یو؟ I'm good. So my first question, why you are in Ghurki? Why you selected Ghurki? The name, it actually portrays in Nigeria because I had initial spine surgeons from Nigeria that came here to train, and we saw what they were doing. They were doing very well, and they spoke beautifully about the training here. So I decided to come here and experience it firsthand. And alhamdulillah, I've really experienced the good side of this hospital. There are lots of very good trainers here. They are very welcoming, and they are always ready to put you through. So, and the whole environment makes you feel at home, relaxed, and you learn a lot. And who is your role model here? The boss himself. There are 4-5 bosses. No, the boss. So all bosses are your role model. They are my role. I get a lot from everybody. Do you like Pakistani food? Alhamdulillah. Which one is the best one? Roti. Roti. Thank you very much You're for it. welcome, sir. گھرکی کے اندر انڈر ون روف کتنی ٹائپ آف سرجریز ہو رہی ہیں اس وقت؟ میں بڑا آج خوش ہو رہا ہوں جی، آپ ایک پڑھا لکھا بندہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں۔ 9 اقسام ہیں جی آرتھوپیڈکس کی،
ہر ایک قسم اللہ کے فضل سے یہاں ہو رہی ہے. ٹھیک. اور جو میرے 9 بچے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں وہ باہر سے ٹریننگ لے کے پھر یہاں کام کر رہے ہیں. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میرا 250 بستر کا آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے جو دنیا کے سب سے بڑے ڈپارٹمنٹس میں سے ہیں. 10 اور آپریشن تھیٹرز ہیں میرے آرتھوپیڈکس کے صرف. السلام علیکم جی. آج ہم آپ کو ویلکم کروائیں گے. آج ہمارا یہ اسپائن سینٹر ہے, پاکستان کا فرسٹ اسپائن سینٹر ہے. مسجد ایریا جی, یہ مسجد ایریا اس لیے کیونکہ ڈیورنگ سرجری بھی جو ہے سم ٹائم جیسے رمضان وغیرہ بھی آتا ہے تو اس میں لوگوں کو اوبیسلی چینج کر کے باہر جانے میں, کیونکہ ہم انفیکشن پہ بڑا ہمارا فوکس ہوتا ہے. آگے ہمارے جو ٹوٹل تھیٹرز ہیں وہ صرف آرتھوپیڈکس کے 10 ہیں, اور 10 اسٹیٹ آف دا جی آرتھوپیڈکس کے 10 تھیٹر ہیں جو مارننگ میں چلتے ہیں. 10 کے 10 تھیٹرز, اور 10 کے 10 تھیٹرز میں سرجریز ہوتی ہیں. یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ آرتھوسکوپی نہیں آرتھوسکوپی ڈاکٹر مینوین کرنے لگے ہیں. پروفیسر عتیق الزمان صاحب ہیں جو اس وقت ہپ کی سرجری, بچوں میں جو کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں سرجری, ہپ ٹیڑھی ہوتی ہیں, ان بچوں کے لیے یہ سرجری کی جا رہی ہے. اور ہر تھیٹر کا ہمارا اپنا امیج انٹینسیفائر ہے تاکہ ہم یہاں پہ جب سرجری کریں اس میں انڈر امیج جو ہے وہ پھر ہم پروسیڈ کریں. یہ ہماری مائکروسکوپ ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی باہر کہ ہم مائکروسکوپ جو سرجری اسپائن کی جو سرجری ہے وہ ہم نے سب سے پہلے اسٹارٹ کی تھی. اور ہم اس کو مائکروسکوپ, بہت سارے لوگوں کو نا یہ اصل میں کاسمیٹک سرجری کے لیے لوگ کہتے ہیں انسیجن زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے, تو اس کے لیے ہماری مائکروسکوپ جو ہے وہ پھر مائکروسکوپ کے ذریعے سرجری کرتے ہیں. اس کو ہم نے کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے, یہ ریڈ زون ہے. اس کے لیے اسپیسیفک ٹیم ہے جو ہمارا CSSD ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ ہمارے جو اسکربڈ لوگ ہیں وہ اس ایریا میں نہیں آ سکتے. بیک ڈور ہے اور یہ لاک ہوتی ہیں پراپر. جتنی ویسٹیج جو کچھ نکلتا ہے یہاں سے ٹریول کر کے آگے جاتا ہے, یہاں سے باہر نکلتا ہے. انفیکٹڈ تھیٹر مطلب جو بھی کوئی کیسز ہیں ہمارے انفیکٹڈ وہ ہم اس تھیٹر میں کرتے ہیں. اس کی انٹرنس اور اس کے ایگزٹ سب جی بالکل, کیونکہ ہم کسی بھی انفیکٹڈ کیس کو ریفیوز نہیں کرتے, وہ بھلے ہی ایلس ویئر آپریٹڈ ہو. مطلب ہمارے اپنے تو بہت کم ہیں جو ایسے ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ والے جو ہیں وہ پھر ہم یہاں پہ کرتے ہیں. ہمارا CSSD ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ہماری جو آٹوکلیو جو سیٹس ہیں جو ہمارے واش ہوتے ہیں, یہاں پہ یہ ان کا سارا کنڈامینیٹڈ مٹیریل جو مطلب جو بھی سیٹس واش ہونے کے لیے وہ یہاں پہ آتے ہیں. مجھے ابھی برطانیہ والوں نے, برٹش آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن نے بلایا ہوا تھا, ہاؤ ٹو سیٹ اپ اے سینٹر آف ایکسیلنس ان پاکستان. ان کو جب میں نے گھرکی کے بارے میں وہاں بتایا, اور ایک نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ برطانیہ میں کسی ایک آرتھوپیڈک سینٹر میں ایک چھت کے نیچے نہیں ہو رہا جتنا کچھ گھرکی میں جتنا یہاں ہو رہا ہے. اور لیٹسٹ یہ نہیں کہ غریب ہے تو 40 سال پرانا علاج کر دیں نا. سو اللہ کے فضل سے, اور ہم جی کانسٹنٹلی ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں, ہر نئی چیز اللہ ہمیں دے دیتا ہے. جب ہم نے شروع کیا تو مجھ سے پہلے جو لوگ یہاں آرتھوپیڈکس میں تھے 2 سال میں 34 آپریشن ہوئے تھے. ہم نے پچھلے سال 12,000 آپریشن اللہ کے فضل سے کیے ہیں. ایک سال میں 12,000. میرے تھیٹرز 24 گھنٹے چلتے ہیں. میرے پاس 40 اینستھیزیا ڈاکٹروں کی ٹیم ہے صرف آرتھوپیڈکس کی جی. اور جو بچے جو ایمرجنسی آتی ہے جی اسی رات آپریشن ہوتا ہے. 20 کے قریب آپریشنز رات کو ہوتے ہیں جی, اور 20 دن میں. اور مزے کی بات دیکھیں, ہم نے کووڈ میں ایک دن چھٹی نہیں کی. سرکاری ہسپتال تقریباً بند ہو گئے تھے, اور میں نے کہا کہ میں اب بونس پہ زندہ ہوں, میں روز آؤں گا. ہم صبح آتے تھے جی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہ پڑھ کے شروع ہو جاتے تھے. اللہ نے ایسا کرم کیا جی, میرے 200 کی ٹیم ہے جی یہاں, نرسیں, پیرامیڈیکل, ڈسپینسر, کسی ایک نے نہیں کہا کہ نہیں سر ہم نہیں آئیں گے, حکومت نے اجازت دی ہوئی, سب آتے تھے. پاکستان کی آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن نے ہمیں بیسٹ ڈپارٹمنٹ ان دا کنٹری کا ایوارڈ دے دیا. ایک ابھی ہم نے سر آج صبح آپ کی ایک ایکسرسائز دیکھی کہ آپ ایک تھیٹرز کے ساتھ آپ کا ایک میٹنگ روم ہے اور ایک کیس کا ایک ڈسپلے آ رہا ہے. اچھا, موسٹلی ہم جب ہاسپٹلس میں جاتے ہیں نا تو یہ بڑی ایک ایکسیپشنل سی, آج پہلی دفعہ میں نے کہیں پہ یہ کوئی چیز دیکھی. ہر صبح یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو رات کو ایمرجنسیاں آتی ہیں اور جن کا آپریشن ہوتا ہے وہ صبح پریزنٹ ہوتا ہے. اور میرا سب کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ میں اگلے دن آپریشن کے بعد والے ایکس رے دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں سنوں گا کہ جی ہم نے یہ کر نہیں سکے, یہ نہیں, غلط بات.
इतने थिएटर्स हैं, ज़्यादा काम है तो और खोल लो, ठीक है. सो वो रात की एमरजेंसी डिस्कस होती है, सुबह जो केस लिस्ट पे होने होते हैं वो डिस्कस होते हैं, और उनके प्लान में कोई रद्दोबदल करना हो तो वो करते हैं, और जो गुज़श्ता दिन सुबह हुए होते हैं उनके एक्सरेज डिस्कस होते हैं, और फिर वार्ड में अगर कोई प्रॉब्लमेटिक केस हो तो वो डिस्कस होता है. हम लोग जी अब तक 157 रिसर्च पेपर्स यहाँ के जर्नल्स में पब्लिश कर चुके हैं, माशाल्लाह. 22 इंटरनेशनल जर्नल्स में कर चुके हैं, और इस वक्त मेरे 7 बच्चे, मैं तो जी प्रोफेसर भी मेरे बच्चे हैं, इस वक्त दुबई गए हुए हैं इंटरनेशनल AO स्पाइन और ट्रॉमा मीटिंग में फैकल्टी के तौर पे और पार्टिसिपेंट्स के तौर पे. वेरी गुड. हमारी दस्तरस्त में ना हो तो हम नकल कर लेते हैं. अच्छा. पाकिस्तानियों का तो जवाब ही कोई नहीं है जी. इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर नईम अहमद साहब बैठे हुए हैं और थोड़ा सा अब इनसे हम गुफ्तगू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आमिर, जब मैंने घुरकी ज्वाइन किया इट वाज इन 2001. 2001. ओके. और उस वक्त मैं पहले इधर काम कर रहा था, फिर आमिर साहब ने जैसे ही सर्विसेज हॉस्पिटल से रिज़ाइन किया जी. तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे वो लोगों की खिदमत कर सकें और फ्री ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकें. तो चूँकि वो प्राइवेट सेक्टर में थे तो वो इस तरह की फैसिलिटी तो नहीं थी, तो फिर उन्होंने घुरकी को सिलेक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दैट वाज अ गोल्डन डे फॉर द इंस्टीट्यूशन के आमिर साहब ने इसको ज्वाइन किया. और जैसे ही पहले जब मैं इधर बैठ के पेशेंट देखा करता था तो इट वाज ऑन द वेरी अर्ली स्टेज, और हार्डली 8-10 पेशेंट डेली आते थे जिनको हमने सिर्फ OPD बेसिस पे देखना होता था ज़्यादातर, और सर्जरीज कभी कभी हुआ करती थी. लेकिन जब आमिर साहब इधर आए और उन्होंने ज्वाइन किया तो लिटरली वो अपने साथ पेशेंट्स का एक हजूम साथ लेके आए. ओके. और डे 1 से, जिस दिन मुझे अभी भी याद है, जिस दिन आमिर साहब आए जिस दिन, और पहला मेरा OPD था उनके साथ, तो इतना बिज़ी डे था कि हम बहुत थक गए थे शाम तक. और उस वक्त हम देखा करते थे OPD में 125 टोकन दिया करते थे, और पेशेंट जो है ना एक रात पहले इधर आके बिस्तरों पे लाइनें लगा के लेट जाते थे टोकन सुबह लेने के लिए. अजानों का एक टोकन मिला करता था, तो उस वक्त 125 टोकन दिया करते थे. तो वो 125 पेशेंट्स मैं और आमिर साहब अकेले देखा करते थे, और इस तरह हमने 6 से 8 महीने बिल्कुल अकेले काम किया. और इस वक्त आप देखें ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 21 ईयर्स 22 ईयर्स, जितनी प्रोग्रेस अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान में की है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो मेरे ख्याल घुरकी का नाम बहुत ऊपर है. पाकिस्तान का ऑर्थोपेडिक की सबसे बड़ी फैसिलिटी है. जो मेन हमारा वर्कलोड है वो है कोल्ड ऑर्थोपेडिक. कोल्ड ऑर्थोपेडिक का मतलब ऐसी सर्जरीज जो कि अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्चर्स हैं. अब उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, डिफॉर्मिटी सर्जरी, स्पोर्ट्स सर्जरी, इसमें बहुत सारी अदर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, ये सारे के सारे यूनिट्स डेवलप्ड हैं. तो फिजियोथेरेपी की पूरी लाहौर की सबसे बड़ी टीम हमारे पास है, और हमारा काम तो सिर्फ ऑपरेशन करना और ऑपरेशन से अच्छे रिजल्ट्स लेना. ये सर्जन का काम नहीं होता, ये टीम वर्क होती है. बिल्कुल. आज हमने आपका वो देखा, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. तो उनके बारे में कुछ भी नहीं. उनका वो बिल्कुल वो चल रहा है, 2 वीक्स पहले हुई है, उनको बुला रहे. इवन उन्होंने कहा कि जी जो लोग नहीं आ सकते उनके घरों तक भी ये लोग चले जाते हैं. एग्जैक्टली. इस वक्त मेरे साथ एक यंग डॉक्टर खड़े हैं, डॉक्टर उस्मान साहब. तो इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने घुरकी को क्यों सिलेक्ट किया. तो क्या हाल है उस्मान साहब, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? तो आप कब से हैं घुरकी? मैं 1 साल हो गया घुरकी में काम कर रहा हूँ. ये मेरे ख्याल से मैंने कहीं और इस तरह से नहीं देखा है डिवीजन, जिस तरह से फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को इस तरह से यहाँ पर लेके चलते हैं. मतलब पेशेंट्स जो हैं वो कैटेगराइज किए हुए हैं कि न्यूरो के पेशेंट्स न्यूरो में देखे जा रहे हैं, MS के रिलेटेड, ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड ऑर्थो में देखे जाते हैं, पीड्स बच्चों का डिपार्टमेंट अलग है, गायनी वुमेंस हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ अलग से ट्रीट किया जाता है उनको. एक और यंग डॉक्टर इफ्रा हमारे साथ है, और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने घुरकी की सिलेक्शन क्यों की. तो क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक अल्लाह का शुक्र. है? ज्वाइनिंग देने की यहाँ वजह क्या थी? क्योंकि एक तो यहाँ पे जो पेशेंट फ्लो है वो बहुत अच्छा है, प्लस ये कि ऑर्थोपेडिकली आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा माना जाता है हॉस्पिटल. तो मुझे मेरी स्पेशलिटी ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आगे मास्टर्स जो है वो भी ऑर्थो मैनुअल में स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. आपको लगता है कि इस वक्त टाउन में सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ इन्हीं की हैं? जी, सबसे बेस्ट सबसे फैसिलिटी. बेस्ट. अच्छा सर, आप एक हमारा कौमी सरमाया भी हैं. एक मुझे बड़ी मतलब जो है ना एक कन्फ्यूजन शुरू में भी रही है कि आपने 2002 में गवर्नमेंट जॉब छोड़ी. उस वक्त लाहौर में और भी कितने हॉस्पिटल्स हैं,
Why you choose घुर्की हॉस्पिटल? लाहौर मेडिकल कॉलेज का मैं एक डायरेक्टर था, तो वहाँ से मुझे ऑफ़र हुई कि यहाँ आके टीच भी करो और काम भी शुरू करो। यहाँ इमरजेंसी नहीं आती थी जी, ये ट्रेनिंग के लिए रिकग्नाइज नहीं था। 9 महीने में अल्लाह के फजल से ये रिकग्नाइज हुआ, और अब आप इमरजेंसी का हाल जाके देखें, रश। इतना काम ऑर्थोपीडिक्स का पूरे मुल्क में नहीं हो रहा है। मेरा नया MRI लग रहा है माशा। पाकिस्तान में, उस तरह का अभी तक कोई नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ओके ओके ओके। अच्छा, मेरे कैंसर के मरीज़ कराची जाते थे साइबर नाइफ के लिए। मैंने कहा यार चलो इलाज मुफ्त हो रहा है, जाना रहना खाना पीना तो मुश्किल है। हमने जी उसके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। $4 मिलियन की मशीन 500 मरीज़ फ्री में ट्रीट कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सना महरीन है, जो कि यहाँ के साइबर नाइफ डिपार्टमेंट को लीड कर रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये साइबर नाइफ है क्या। तो डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ डॉक्टर सना महरीन एंड आई एम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ओवर हियर एट घुर्की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल। सो जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। और साइबर नाइफ जो है बेसिकली ये एक मोस्ट एडवांस्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन है, ठीक, जो कि बेसिकली रेडिएशन डिलीवर करती है, हाई डोज रेडिएशन, और विच इज़ यूज टू ट्रीट कैंसरस एज वेल एज नॉन कैंसरस लीजन्स। यानी कि ये कैंसर और जितने भी कैंसर नॉन कैंसरस लीजन्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज। ओनली 2 मशीन्स आर अवेलेबल ऑल ओवर इन पाकिस्तान। एक कराची में है और एक हमारे पास साइबर नाइफ इस वक्त लेटेस्ट पंजाब में, ऑल ओवर द पंजाब ये एक सिंगल मशीन है घुर्की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में। कब से इंस्टॉल है यहाँ पे? सो इट्स इंस्टॉल्ड सिंस 2022 और एंड सिंस 2022 टिल नाउ हमने यहाँ पर 550 प्लस पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, विद अ सक्सेस रेशो मोर देन 96%। कितने सेशन चलते हैं एक पेशेंट? नॉर्मली विद द साइबर नाइफ 1 to 5 सेशंस आर रिक्वायर्ड, और ये एक नॉन इन्वेसिव तरीका है, पेनलेस तरीका है। जैसे फेस मास्क है जो कि अप्लाई होता है पेशेंट के ऊपर, और पेशेंट 40 मिनट्स वेरी करता है, 30 से लेकर 50 मिनट्स का सेशन है। पेशेंट मशीन में सीधा लेटता है। दिस इज़ नॉन इन्वेजिव, किसी किस्म का पेन नहीं होता, पेशेंट जो है उसको किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं आता, और पेशेंट बासानी यहाँ से ट्रीटमेंट करा के घर चला जाता है। इज देयर एनी एज लिमिट कि कोई उस एज से ऊपर स्पेसिफिकली पेशेंट है? नहीं, कोई एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मशीन एज वेल, बिकॉज इट हैज़ कैरिड नो साइड इफेक्ट। ये बहुत टारगेटेड रेडिएशन है, बहुत प्रीसाइज है, सिर्फ ट्यूमर को डिलीवर करती हैं, हेल्दी टिश्यू सेव रहता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो साइबर नाइफ है ये बॉडी के किस किस एरिया को मतलब ट्रीट कर सकती है? एक्सेलेंट क्वेश्चन। साइबर नाइफ से हम बॉडी के मोस्टली एरियाज़ को कवर कर रहे हैं इस टाइमिंग में, जिसमें से हमारे पास ऑलमोस्ट 70 to 80% बल्क ब्रेन के एरियाज़ का है। ब्रेन के जो बिनाइन है या कैंसरस लीजन है उसके लिए है। सेकेंडली स्पाइन के ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो फिर बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता होगा यहाँ पे? यस, एक्सेलेंट क्वेश्चन। ये वाकई बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ऑल ओवर द ग्लोब। अगर आप यूके और अमेरिका में देखें तो एक एक जो सेशन है उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पेशेंट को कोई कॉस्ट नहीं आता, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ओवर हियर इन घुर्की। घुर्की में जितना ट्रीटमेंट थ्रू साइबर नाइफ हो रहा है, इट इज़ 100% फ्री? इट्स 100% फ्री, और अभी तक हमने जो 550 प्लस पेशेंट्स किए हैं उनको हमने 100% फ्री ट्रीट किया है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर शहजाद जावेद साहब बैठे हुए हैं और इनसे अब गुफ्तगू करते हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब, आपकी एसोसिएशन कब से है घुर्की के? मैं 2003-4 से इधर हूँ। स्पोर्ट्स इंजीनियर जो फुटबॉल खेलते हुए, वॉलीबॉल खेलते हुए, या बैडमिंटन वाले बहुत मरीज़ हैं हमारे पास। बहुत ज़्यादा ये कबड्डी के पेशेंट आते हैं, फिर रेसलर आते हैं। तो उनको अब ये पता है कि ये एक परफेक्ट जगह है जहाँ हम जाते हैं। तो बल्कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि आप घुर्की जाएँ। तो बहुत सारे लेजेंड हैं जो इनके हमने किए हैं ऑपरेशन, और वो अब खेल रहे हैं दोबारा वापस। तो उनमें से जैसे वो मोस्टली क्रिकेटर्स भी हैं और क्रिकेटर्स भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हमने किया तो पाकिस्तान का वर्ल्ड चैम्पियन है, इनाम बट रेसलर है। ओके। उसके दोनों ACL हमने किए। ACL होता है जो गोडे को आगे जाने से रोकता है। अच्छा। उसका टूटा हुआ था तो वो हमने यहाँ उसका ऑपरेट किया, और आफ्टर 3 months ऑफ दैट ही वन ऑस्ट्रेलियन रेसलिंग रेत पे जाके ना अच्छा वो जीता था। उसको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। अभी जैसे आमिर अजीज़ साहब से गपशप हुई तो उन्होंने भी बताया कि भी इतने मैंने ट्रेंड कर दिए हैं जो यंग डॉक्टर्स हैं। अभी डॉक्टर प्रोफेसर नईम साहब से बात हुई, उन्होंने बताया। तो आपकी अभी तक की फिगर क्या है? अभी तक आपकी फील्ड के जो हैं कितने? जितने इधर से ट्रेंड होके गए हैं और जो अभी हो रहे हैं लड़के, ये आर्थोस्कोपी मैं करता था सिर्फ। ओके। अब मैं कम और मेरे स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं। अच्छा। और वो मेरे से आगे जा रहे हैं अब, बल्कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं।
सो आई स्टार्टेड फर्स्ट आर्थोस्कोपी, किसी को नहीं आती थी यहाँ पे। ठीक। 2003-4 में मैंने शुरू की यहाँ के। फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़के, क्योंकि इधर तो इसका पीरियड ज़्यादा होता है सीखने का, फिर जितने मेरे रेजिडेंट हैं माशाल्लाह, एपीज़ हैं, एसोसिएट सब करते हैं। हर तीसरा पाकिस्तानी गुर्दों के उसमें मर्ज में है, ठीक है। एक बंदे ने डायलिसिस यूनिट बना दिया जो लाहौर का सबसे लेटेस्ट है, 22,000 लोगों का डायलिसिस हो चुका जी सो फार जी। सोचते थे, दुआ करते थे, एक बंदा आया कहता है जी मैं आपको मेहमान खाना बना दूंगा, 400 बंदा उसमें रहता है जी। अब बिस्तर, खाना उनको देता है गोरमे बेकर्स वाले, पीने का पानी इस इलाके में नहीं है, हमें आरओ प्लांट बाटा वालों ने 2 दिए, एक मैंने खुद लगवाया। फिर हमें पता लगा जी यहाँ दिल की बड़ी बीमारी है। एक बंदा आया जी, उसने कहा जी मैं अपने माँ बाप के नाम पे दिल का यूनिट बना दूंगा। लो जी, एंजियोग्राफी मशीन आ गई है, अगले महीने से स्टेंट एंजियोग्राफी शुरू हो जाएगी अल्लाह के फजल से, साल बाद बाईपास ऑपरेशंस भी शुरू हो जाएंगे। वेरी अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैंने आपका ना क्लिप देखा था आज से कुछ साल पहले, आपने फरमाया कि जी मैं ऑपरेशन, अगर दोनों नीज रिप्लेसमेंट हैं तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करता हूँ सर्जरी, एक को करता हूँ तो मोस्टली दूसरे पे मुझे जो है ना उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती और अल्लाह उस पर वैसे ही बरकत डाल देता है। यार देखें, अल्लाह के पास चली गई मेरी माँ, मुझे जी 44 साल हो गए हैं डॉक्टर बने हुए। अब तक अम्मा जी के फौत होने से पहले थे, मैं रोज़ उनसे ऑपरेशन डे पे दुआ करवा के आता था कि या अल्लाह, कि अम्मा जी दुआ करना अल्लाह आसानी पैदा कर दे। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करता हूँ जी। हर चीज़ हम दाईं साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड से, एग्जैक्टली कि सुन्नत का भी हमें मिले, सवाब करने तो दोनों हैं, मैं राइट क्यों ना कर लूँ पहले। और यकीन करें जी, अल्लाह ने बड़ा सुरखरू किया इसमें। जब उसके लिए करते हैं ना जी, तो ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जिससे हम डर रहे होते हैं वो भी नहीं होती। डॉक्टर साहब लास्ट में आपके फ्यूचर प्लान? मेरा फ्यूचर प्लान ये जी कि मैंने, हजूर की एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जो इंसानी जानों का इलाज करता है उस पे लाजिम है कि उस चीज़ में यदे तूला हासिल कर ले, मॉडरेशन में नहीं है। हजूर ने फरमाया कि बेस्ट बनो। तो मेरा जी कांस्टेंट यही है कि मेरा डिपार्टमेंट हर चीज़ में वर्ल्ड क्लास होता जाए। वेरी गुड, वेरी। अब स्पाइन में हम वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं, फुट एंड एंकल में हम वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ में, ट्रॉमा में, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में, अब हर जगह से हमें रिकग्निशन मिल रही है। तो मेरी ख्वाहिश ये है जी कि एक मेरा रोल मॉडल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है अदीब रिजवी साहब। बिल्कुल ठीक। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में हो जाए तो मैं खुशकिस्मत होऊंगा, लेकिन बाद में होता रहे कि हर चीज़ मुफ्त हो। इस मुल्क में इतने ज़्यादा सखी लोग हैं जी, सिर्फ उनको ये एतमाद हो कि ये 2 नंबरी नहीं करेगा।